So firstly, one of the doubt, exercise 1.5, question number 5, second one. We have to draw the Venn diagram of A complement intersection B complement. That is the Venn diagram we have to draw. Okay. Now, A complement intersection B complement का Venn diagram कैसे draw कर सकते हैं? So by the De Morgan's law, we should know that that is what? That is basically A union B whole complement. According to the De Morgan's law, that is basically A union B whole complement. And we know that. What is the Venn diagram of A union B? A union B Venn diagram is which cover up A and B both. That is the Venn diagram of A union B. That is A union B. We know already. Okay, and we have to find out A union B complement. Complement that is A union B को छोड़कर बाकी जो एरिया बच गया यूनिवर्सल सेट में, that is basically show the A union B whole complement. And this one will be this shaded region. This shaded region shows the area A union B whole complement, or we can say A complement intersection B complement. So that is how we can shaded the area. This one, A complement intersection B complement. Okay. Now, some other questions related to this one, which are from the miscellaneous. Then the chapter number 1 will be finished. So please write down the question. Show that for any set A and B, A will be equal to A intersection B union A minus B, and second part we have to prove A union B minus A will be equal to A union B. So that is two equations basically we have to prove here. The first one is A set A should be equal to A intersection B union A minus B. And second one we have to prove A union B minus A is equal to A union B. अब देखिए वेन डायग्राम से तो बहुत इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ एल्जेब्रिकली प्रूव करना है. लिसन वेरी केयरफुली, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. Example that the first one part we want to prove, that is A intersection B union A minus B will be equal to A. Okay, तो इसमें RHS वाला पार्ट देखोगे, that is RHS part we can make equal to A, but simply A को लेके RHS part prove करना थोड़ा typical हो जाएगा. Okay, so whenever we have to prove first one part, यहाँ पर है ना, जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई ऑपरेशन से रिलेटेड वो सब अप्लाई होंगी यहाँ पर. ओके, तो आप देखिए, मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव करना, देन आई हैव टू टेक द आरएचएस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, देन इट विल बी इक्वल टू. अब देखिए ये किसके इक्वल होगा, तो पहले तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी को तो एज इट इज लिख देता हूँ यूनियन. नाउ लिसन, ए माइनस बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी? ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी? दैट इज ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो। और ए माइनस बी को यदि हमें इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखना हो, देन वी कैन राइट डाउन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी डिनोट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, दैट इज ए माइनस बी वी कैन राइट डाउन, क्योंकि ए माइनस बी कौन सा एरिया शो करता है? इफ यू विल सी विद द वेन डायग्राम, तो a minus b showing only that area. Okay, and that area basically the common area of a and b complement, and that is also show the area a minus b. Okay, so they both are equal, we can write down। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी ए इंटरसेक्शन बी में लिखा हुआ है, फिर यूनियन हमने ए माइनस बी को भी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया, जिससे हम बहुत इजीली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकें। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज A intersection B union B complement, that is by the distributive law we can write down। आप ओपन करोगे ना ब्रैकेट, तो वापस वही टर्म आ जाएगी आपके पास। ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन अप्लाई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सुनो मेरी बात। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एक तो हो गया सेट बी, एक हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला एरिया। ओके, एक हो गया बी, एक हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला एरिया। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? पूरा यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। ओके, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसको डिनोट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। बहुत इजीली इन चीजों को हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ओके, और ऐसे भी अब आप है ना एक thought apply करो, that is a set B and B complement that is in which not the element of B। दोनों को ज्वाइंट कर दो, यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन कर दो, that is denote the universal set। और ये कॉम्प्लीमेंट में प्रॉपर्टी भी स्टडी की है हमने। ओके, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। एंड A intersection universal set we know that is equal to A, that is the law also we studied कि दोनों में से छोटा सेट कौन सा है? A है। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजीली हमने प्रूव कर दिया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट वी प्रूव। ओके, क्लियर? Whenever we have to prove second part, my dear, we will take LHS A union B minus A। वी विल राइट डाउन A यूनियन। अब देखिए जैसे फर्स्ट में हमने A माइनस बी को क्या लिखा था? फर्स्ट में A माइनस बी को क्या लिखा था? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। Similarly, here B minus A, we can write down B intersection A complement। Is it clear? That is, we can write down B intersection A complement। Now again, I think we can apply the distributive law। हम यहाँ पर देखिए जो हमें प्रूव करना है ना, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी, दैट इज आवर टारगेट। ओके, ए यूनियन बी हमें प्रूव करना भी है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, देन इट विल बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी तो एज इट इज इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा था, क्लियर? और दोनों में से स्मॉल सेट कौन सा होगा? नेचुरल है, स्मॉल सेट ए यूनियन बी होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी, हैंस प्रूव। आगे आरएचएस की इक्वल प्रूव, प्लीज नोट इट डाउन। आई थिंक अंडरस्टूड। ओके, just note, so we will move to the next question।
Okay. Yeah. Next question. Let capital A and capital B be sets if A intersection X, B intersection X will be equal to phi, A union X, B union X for some set X, show that A is equal to B. Here we have to show that two sets A and B are equal if A intersection X and B intersection X they both are equal to phi, और A union X और B union X क्या हो, इक्वल हो फॉर सम सेट X. अब यहाँ पर कैपिटल X कुछ भी हो सकता है. ओके, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिए. अब देखो ए सेट को बी सेट के इक्वल प्रूव करना है. तो आप ए ले लो और ए से बी प्रूव करो. बट प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है. प्रूव करने के लिए हमें सब लॉस पता होने चाहिए. अच्छा, उन लॉस के साथ एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो हमें गिवन डेटा है, देखो यहाँ पर गिवन डेटा कौन सा है. इफ यू विल ऑब्जर्व दैट दो पॉइंट्स गिवन है हमें, एक ये गिवन है और एक ये. तो इन दोनों को कैसे अप्लाई करेंगे. ओके, ये भी आना चाहिए. तो जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट. लेट वी हैव टेकन A, set A. Okay, we have taken capital A. Now, how we can write down capital A? We know that capital A we can write down A union phi by the law. Okay, by the law we can write down A is equal to A union phi. And again A union. Now phi की वैल्यू क्या लिख सकते हैं. By the given by the given point phi we can write down B intersection X. Phi we can write down B intersection X, that is we have to given. That is we have to given. In the bracket we will write down that is given. Now we will apply the distributive property. Okay, distributive property we can apply. A union B intersection A union X. That is we can apply. A union B as it is, intersection A union X. Again, you can see A union X किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, B union X के. That is also we have to given. Is it clear? Okay, this is also we have to given. Now A union B intersection. Now B union X, can we write down X union B by the commutative law? Can we write down by the commutative law? Okay. Now again, A union B intersection X union B. So we can apply distributive property again. That is A intersection X union B. देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यूनियन आ रहा है. राइट, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यूनियन बी दोनों में कॉमन आ रहा है. यहां से हम पता लगाते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करना है. क्लियर और नॉट. ओके, that is A intersection X union B. And again we know that what is A intersection X, that is equal to phi. That is we have to given. And this is equal to B. Hence proved. The thing we have to given. I think you understood.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ABC आर three sets such that A union B is equal to A union C. A intersection B is equal to A intersection C. We have to show that B will be equal to C. We have to show that B will be equal to C. ओके, इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें ए और बी को इक्वल प्रूव करना था, यू कैन सी इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। ओके, बट यहाँ पर एक पॉइंट गिवन था कि फाई की वैल्यू दे रखी थी हमें। ओके, तो हमने फाई वाला लॉ अप्लाई कर दिया। बट आप इस सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे देयर इज नो सच थिंग वी हैव टू गिवन फाई। ओके, ऐसा कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे देखिए आप। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है जो हमें गिवन है, दैट इज ए यूनियन बी will be equal to A union C. That is we have to given. Is it clear? That is we have to given. Now what we will do, we will apply intersection with C on both side. Intersection with C on both side we will apply. So A union B intersection C, A union C intersection C, both side we will apply. अप्लाई करते ही अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A intersection C union B intersection C. Similarly, on right hand side, we can apply, then it will be A intersection C union C intersection C. And one thing we should know, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन खुद के साथ कितना होता है, अगेन द सेम सेट। ओके, तो C इंटरसेक्शन C को तो हम C लिख देंगे, और ए इंटरसेक्शन सी, नोटिस करो ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल गिवन है हमें, हमें ऑलरेडी गिवन है ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, दैट इज वी हैव टू गिवन, दैट इज वी हैव टू गिवन, एंड हियर वी जस्ट राइट डाउन ए इंटरसेक्शन सी एंड दैट विल बी सिंपली यूनियन सी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी union B intersection C will be equal to, ओके। अब इसका मीनिंग समझना है हमें, इधर देखो सामने, आप देखिए ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, नोटिस करें कोई वेन डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पर, एक ए है और एक सी है, तो दोनों का ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। ओके, और दूसरा क्या बोल रहा है, किसके साथ यूनियन करना है, सी के साथ, तो सी के साथ यूनियन करना है, ये पूरा सी है हमारे पास, तो आप इसके साथ यूनियन करेंगे तो अगेन क्या आएगा, सी। तो इस पूरे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम इफ वी आर गोइंग टू चेक वी कैन राइट डाउन विद सी। ओके, वी कैन राइट डाउन विद सी, दैट इज लेट इक्वेशन नंबर वन। तो सी का वैल्यू आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
Is it clear? Okay. That is, we find out by the A union B is equal to A union C. हम वापस क्या करेंगे? अगेन वापस सेम ले लेंगे. A union B is equal to A union C. पहले हमने इंटरसेक्शन किसके साथ किया था? सी के साथ. अब हम इंटरसेक्शन कर देंगे बी के साथ. नाउ इंटरसेक्शन विद बी ऑन बोथ साइड. इंटरसेक्शन विद बी ऑन बोथ साइड. वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो जैसे पहले वाले में प्रोसेस किया है. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी. और इधर अप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी. अब वापस हमें पता है बी इंटरसेक्शन बी तो बी के इक्वल होता है. एंड हियर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ से. कोई दिक्कत नहीं है. और देखिए जो एलएचएस साइड पे आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी वही वेन डायग्राम से बी के इक्वल आ जाएगा जैसे वो सी के इक्वल आया था. तो दैट विल बी बी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. So now you will observe that by equation number 1 and 2, B and C are equal. Okay, you can check. By equation 1 and 2, B will be equal to C. Hence proved. Here, that is B will be equal to C. So how we can prove such type of question? I explained you. Written? Okay. Next question. If A is subset of B, then show that C minus B is subset of C minus A. C minus B is subset of C minus A. That is, we have to prove. Okay. अब देखिए किसी भी एक सेट को देखो हर किसी का प्रूव करने का मेथड जो होता है वो डिपेंड करता है हमें गिवन क्या है. व्हाट इज वी हैव टू गिवन. यहां पर आप नोटिस करेंगे एक पॉइंट गिवन है ए सबसेट ऑफ बी. और फिर हमें प्रूव करना है सी माइनस बी जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा? सी माइनस ए का. किसी भी एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करते हैं कि पर्टिकुलर उस सेट के जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में कंटेन होने चाहिए. If the elements of C minus B are contained in C minus A, then we can say C minus B is subset of C minus A. Otherwise, not. That is the simple logically we can prove it. Okay. So we will take arbitrary element in C minus B and we will show that
दैट आर्बिटरी एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग टू सी माइनस ए। ओके। और जब भी कोई आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं तो हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जी कुछ भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करने का एक मैंने मेथड बता दिया आपको कि कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे लेट एनी आर्बिटरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। लिसन वेरी केयरफुली। कोई भी एलिमेंट सी माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी आर्बिटरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सी माइनस बी? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन से यदि हम देखें तो इसका मीनिंग होता है एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी माइनस बी। सो वी विल राइट डाउन x belongs to C and x does not belongs to B. Okay, x does not belongs to B. That is according to the difference of sets definition. Now x belongs to C and अब देखिए, जो एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है 101% वो एलिमेंट ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है। A is subset of B. Then we will write down X does not belongs to set A because this is already given. A is subset of B. ये already given है हमें, तो ये सबसेट की डेफिनेशन से लिख दिया। अब देखो, X belongs to A and X does not belongs to A, इसका मतलब क्या हुआ? X belongs to C minus A. Clear by the definition of difference of sets. Okay. तो देखो x बिलोंग्स टू c माइनस बी है और हमने उससे क्या प्रूव कर दिया? x बिलोंग्स टू c माइनस ए implies that c minus b is subset of c minus a, hence proved. Hence proved. Got it? So here we applied the definition of difference of sets, subset. तो दो कंसेप्ट यहां पर यूज हो गया। ओके, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन वी डन। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, if A and B are two sets, then prove that A minus B will be equal to A intersection B complement. A minus B will be equal to A intersection B complement. That is, we have to prove. So before starting this one, listen very carefully. See on the board. From the starting one we check. देखिए, ये जो फर्स्ट प्रूविंग वाला क्वेश्चन किया था, सेट्स को इक्वल प्रूव करना था, तो यहाँ पर हमें कुछ और मैथमेटिकल कंसेप्ट गिवन था। ओके, सेकंड वाले में ऑलरेडी दो इक्वेशन गिवन थी जो यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं हमने। ओके, देन हमने इसको उनकी हेल्प से प्रूव किया। थर्ड में देखो, हमें वापस दो कंसेप्ट गिवन थे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके कंसेप्ट से हमने बी और सी को प्रूव कर दिया। इन द सिमिलर वे अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, दो सेट दे रखे हैं और हमें a माइनस बी को किसके इक्वल प्रूव करना है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। वेन डायग्राम से तो मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, वेन डायग्राम से तो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, आई थिंक आज के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है ये, राइट। बट एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे?
तो देखिए यहाँ पर और कुछ तो हमें हिंट गिवन नहीं है, तो जब भी कोई हिंट गिवन नहीं होती तो कैसे प्रूव करते हैं? ये मैंने आपको सबसेट में लिखवाया भी, ये कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे? द कंसेप्ट इज, इफ यू वांट टू प्रूव two sets are equal, then we will prove firstly A is subset of B and we will prove that B is subset of A. पहले वाले को दूसरे का सबसेट प्रूव कर दे और दूसरे को पहले वाले का, दोनों प्रूव कर दिए, देन ए और बी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल prove that is A minus B is subset of A intersection B complement. Okay, and A intersection B complement is subset of A minus B. Clear? So let X belongs to A minus B. What is X belongs to A minus B? We know the definition. X belongs to A and X does not belongs to B. So X belongs to A and now listen. When X does not belongs to B, ऐसा एलिमेंट जो B में बिलोंग नहीं करता तो वो किस में बिलोंग करेगा? B कॉम्प्लीमेंट में। 100% है ये तो। So that is, we can write down X belongs to, sorry, X belongs to B complement. अब आप डेफिनेशन में देख लो, X belongs to A and X belongs to B complement, इसका मीनिंग क्या हुआ? बाय द डेफिनेशन X belongs to A intersection B complement, that is by the definition of intersection of two sets. तभी हम आपको बार बार बोलते हैं दैट इज डेफिनेशंस बहुत स्ट्रांगली पता होनी चाहिए हमें, देन वी कैन प्रूव। सो यू कैन सी दैट X belongs to A minus B, then we prove that X belongs to A intersection B complement। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? That is A minus B is subset of A intersection B complement, equation number one. Clear? Okay. Next. Also, in the next step, we will take let Y belongs to. अब हम Y belong करते हैं किसको? A intersection B complement को। Y belongs to A and Y belongs to B complement. Implies that Y belongs to A and Y does not belongs to B. Naturally जो B complement में होगा वो B में नहीं होगा। Got it? Okay. Then Y belongs to, by the difference of set definition can be written A minus B. So again, by the subset definition, we can write down A intersection B complement subset of A minus B. So A minus B subset है A intersection B complement का, और A intersection B complement A minus B का subset है। So by both equation number 1 and 2, A minus B is equal to A intersection B complement. Hence proved. Clear? That is how we complete some important questions from the miscellaneous.